Hello everyone, it is with the immense pleasure to introduce you all with Mr. Friend UPSC. I welcome you all in this very first video of Mr. Friend UPSC. आगे बढ़ने से पहले let me tell you something about Mr. Friend UPSC. Who we are. Your go-to ally in this journey of UPSC. Who will walk every step in this journey with you. Mr. Friend UPSC is going to be that space for you where you can share, reflect from your first step to final success. We are here to guide you, support, and empower you every single day with clarity, consistency, and discipline. So, unpack this journey ahead. जैसा कि हम सबको पता है that UPSC is not merely a test, it is more than that. It is a journey of personal evolution, right? So in this presentation, in this video, we are going to offer you the holistic view about the UPSC preparation, mindset, strategy, and the sustainability. So whether you are starting, struggling, or stepping away, this video is for you, my dear friends. This is for you. So let's start. सबसे पहले let's understand the craze around UPSC Civil Services examination and embrace it with the clarity. इतना हाइप क्यों एग्जिस्ट करता है इस एग्ज़ाम के अराउंड? There are many reasons, but few important reasons are listed here. Like जो roles offered होते हैं like IAS, IPS and IFS, these are not just the positions. These are the positions with a lot of responsibilities where we can deliver our vision for the welfare of people, our fellow citizens. So that's why it is considered to be one of the reason for the hype around UPSC Civil Service examination. Also, cultural legacy of respect and social mobility, of course, for the middle class people and lower middle class, right? And the practical hype about 1 million aspirants हर साल यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, और उसमें से प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस में हज़ारों बच्चे जाते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू में कुछ बच्चे, तो लाखों से हज़ारों, हज़ारों से कुछ हज़ार तक सिमट जाने की ये जो कहानी है, इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस बनाती है और एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बना देती है. साथ ही इसकी दूसरा पहलू भी है कि जब हम इस प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना क्लैरिटी के इस प्रिपरेशन में एंट्री कर लेते हैं, राइट, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, मे बी प्रेशर, काइंड ऑफ सोशल प्रेशर, राइट, या किसी से एडमायर होके या कुछ भी ऐसा. तो उससे होता क्या है कि इन चीज़ों से ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वी फील burnout, anxiety, right, and isolation. तो ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं. And also we deliver a lot of energy and time to this preparation, तो वो भी एक फैक्टर है. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे और इन सबको एक क्लैरिटी के साथ आप तक पहुंचाएंगे, समझाएंगे, राइट. हमारा मैसेज यूपीएससी जर्नी के लिए सिंपल है कि वी ऑल नो दैट यूपीएससी इज़ अ पावरफुल पाथ बट नॉट द ओनली वन, राइट. तो आई वॉन्ट वॉट मिस्टर फ्रेंड वॉन्ट यू टू के अप्रोच इट विद क्लैरिटी, राइट, नॉट जस्ट एडमायरेशन. लेट पर्पस गाइड योर प्रिपरेशन, नॉट हाइप, बिकॉज success lies not in chasing the prestige,
but in aligning your strength with your goals, right? So let's move ahead. From entry to exit, as we all know, there are three sort of people in this journey. तो सबसे पहले जो लोग शुरुआत कर रहे हैं और या इस प्रिपरेशन में पहले से हैं, ठीक है, वो ये जानते हैं भली बात ही कि भैया एग्ज़ाम इज़ नॉट मेरली अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, राइट? इट डिमांड्स मोर देन दैट. इट डिमांड्स एप्टीट्यूड, योर इमोशनल रेजिलियंस एंड अबव ऑल कैरेक्टर, जो कि लवसना का एम्बलम भी कहता है कि सीलम परम भूषणम, कैरेक्टर इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू. So this preparation is kind of a character building exercise for all the aspirants. So this exams evaluates your intellect, your attitude and your ability to endure and evolve holistically, right? तो इन सब चीज़ों को हम अपने अंदर लाएंगे अगर नहीं है, और अगर हैं तो उसको कैसे कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे. जैसे कि हमने कहा कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट मेयरली अबाउट नॉलेज, इट इज़ मोर देन दैट, राइट? सो दैट इज़ वाई even brilliance does not guarantee success here, right? There are some unseen factors which we sometimes call luck or destiny also play a role in this examination cycle, right? For example, how is your mood on the day of exam, right? Mental state. So these are also the factors. Your attitude also decides how you are going to excel in this journey. जैसे ये वाला संदीप भैया फ्रॉम एस्पिरेंट्स, वी ऑल नो दिस एग्जाम्पल वेरी वेल, कि सब चीज़ है बट स्टिल नहीं हो पाया. तो दैट डजेंट मीन कि चीज़ें यहीं ख़त्म हो गई, राइट? बिकॉज यूपीएससी इज़ जस्ट अ चैनल, राइट? इट इज़ नॉट द एंटायरिटी ऑफ योर लाइफ एंड माई लाइफ, राइट? जर्नी बहुत बड़ी है यार. इट डज नॉट एंड विद दिस एग्जामिनेशन और विद दिस चैनल ऑफ यूपीएससी. लाइफ में भी बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, बढ़ने के लिए, राइट? तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट आस्पेक्ट एज वेल, राइट? इफ यू आर जस्ट बिगिनिंग योर प्रिपरेशन, तो for you what we are going to do, we will help you exploring why you are entering this journey. Obviously मुझसे बेहतर आप ही जानते होंगे, we will embrace it with more clarity for you. Secondly, we are here to guide you on how to proceed with calmness and confidence, right? We will not just share smart strategies to use resources, but we will demonstrate them as well, right? And that too is holistically. Secondly, if you are in the middle of this journey, so we are here to provide you targeted improvement plans to elevate your preparation. Not just evaluate, but to elevate your preparation through a structured checklist method and some other things as well. Along with this, we will help you in building an attitude to overcome mental challenges, anxiety and social pressures. क्योंकि ज़्यादातर लोग हम जो प्रिपरेशन के मिडिल में होते हैं तो इन सब चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, और इस कारण से कई बार क्या होता है, हम अपने आप को सोशली बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हैं, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम वी मैनी ऑफ अस फील डिप्रेस्ड. तो उन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, तो उसके लिए भी चीज़ें हम इसमें करेंगे, राइट? एंड लास्टली, those people, those who are thinking to stepping away from this cycle, right? My message for them is very simple. If you entered in this journey like a king with full confidence, right, and courage, then I also want your exit must be just as brave and graceful. ठीक है? नो सोरो नो रिया, कोई पछतावा नहीं, कुछ नहीं. जस्ट बिलीव इन वन थिंग, निष्काम कर्म. मेहनत की है
जितना कर सकते थे, ठीक है। कुछ अदर फैक्टर्स रहे, नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब हम इस चीज़ पे, इस जर्नी को छोड़ रहे हैं या छोड़ने का सोच रहे हैं। तो जस्ट बिलीव कि जो चीज़ें यहाँ पे हासिल की हैं, they are definitely going to reflect in my character. They have made me strong. They have strengthened me internally, emotionally and physically as well. So इसमें दो तरीके की कैटेगरी के लोग हैं। पहला, अगर आप डिसाइडेड कर चुके हैं कि आपको अब आगे करना क्या है, तो आई वॉन्ट डू इट जॉयफुली, बिना पीछे देखे। कि अगर इफ़ यू हैव डिसाइडेड, then go for it, right? You will definitely succeed if you will do it with consistency and discipline, which you of course I believe gained through this journey of UPSC preparation, right? Now comes to the category 2. अगर आप अपना planning exit कर रहे हैं, तो for you we are here to help you in designing an optimal exit strategy. ठीक है, जो आपकी स्किल्स जो आपने इस प्रिपरेशन के दौरान लिए और जो आपने नॉलेज गैदर करी है, उन सब के बेसिस पे वी विल हेल्प यू विद एन ऑप्टिमल एग्जिट स्ट्रेटजी, राइट? ताकि आप आगे भी इन चीज़ों को ध्यान में रख के ग्रोथ कर पाएँ, राइट? So this is not just about leaving, it's about transitioning with clarity, confidence and of course a sense of purpose. ठीक है, इसकी बात बिगड़ लेते हैं। I personally believe there are three prominent pillars in this journey of UPSC. First, mental pillar, को हम फेस करते हैं मोस्टली व्हेन वी आर इनटू द प्रिपरेशन फेज, राइट? फिजिकल पिलर, जिसमें फिटनेस, हेल्थ, बॉडी एंड ऑफ कोर्स द एकेडमिक पिलर, जो कि अब इसमें से ऐसा कुछ नहीं कि कोई कोर पिलर है। तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड एंड इक्वली इम्पोर्टेंट है एज फार एज आई बिलीव, राइट? सो I believe in this के holistic habit for success is body, mind, intellect. अगर ये तीनों चीज़ इंटीग्रिटी में है, राइट? अगर ये तीनों चीज़ इंटीग्रिटी में है और उसके साथ कंसिस्टेंसी है, राइट? तो चीज़ें हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंटल पिलर की, जो कि आपको इंटरनली स्ट्रेंथन करेगा, राइट? उसमें क्या है, क्लैरिटी क्या करती है? क्लैरिटी आपको विजन को शार्प करती है कि आप बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन्स में हैं। अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है, राइट, कैसे करनी है, देन यू आर सॉर्टेड। क्योंकि अगर आपको क्यों और कैसे पता है, तो यू आर जस्ट गोइंग टू फोकस योर होल एनर्जी ऑन डूइंग इट। इससे आपका एक माइंडसेट तैयार होता है जो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सो मैनी डिफ़िकल्टीज। तो देयर आर सो मैनी वेज जो हम आगे टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इनको यूज़ करके, बिलीव मी दीज थिंग्स वर्क, ठीक है? जो भी आपको लगे आप कीजिए, आपको मेंटल कामनेस प्रोवाइड करेंगी डेफिनेटली। लाइक मेडिटेशन है, जर्नलिंग है, डीप ब्रीथिंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वन टास्क एट अ टाइम। मल्टीमीडिया नहीं होना है, इंसान है, एक साथ कई सारे काम करने के लिए मशीनें हैं, बना चुके हैं। तो हमको क्लैरिटी के साथ अपना एक बार में जो काम है उसी पे फोकस करना है, राइट? मोस्ट इम्पोर्टेंटली टॉक इट आउट। अगर आप किसी चीज़ में अटक गए हैं, राइट, झिझक रहे हैं, डर लग रहा है, कुछ भी है, टॉक इट विद योर पीयर्स, मेंटर्स,
और इवन अगर आप किसी ऐसी एक्सट्रीम स्टेज पर हैं तो टेक आउट द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, राइट। चाहे वो फिर कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के मेंटर्स हों या इसके बियॉन्ड किसी भी तरीके की आपको कहीं से हेल्प लगती है तो टॉक अबाउट इट, राइट। देयर इज़ नो नीड टू लॉक योर सेल्फ इन अ रूम के बात नहीं करनी। एंड और ये क्या लोगों के लिए मतलब इट इज़ लाइक दैट कि सबका नेचर अलग अलग है। किसी का है कि वो बंद कमरे में रह सकता है, किसी का है कि वो नहीं रह सकता। he or she is very socially kind of person, so just nurture your nature, go with it, don't go against at all कि बस पूरी तरीके से ही अपने आप को सोशली आइसोलेट करके बैठ गए। बिकॉज दिस प्रिपरेशन इज not just about seeking knowledge and applying it during the day of examination, it is more than that, right? So we need to build our character with mental strength, physical strength and academic strength. So उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आजकल जो हम सबसे ज़्यादा चीज़ें फेस करते हैं कि हम डिजिटली इतने ज़्यादा चीज़ों में घुस गए हैं कि हमारा फोकस ही एकदम बेकार हो गया है। सो फॉर दोज थिंग्स वी नीड टू डिजिटली डिटॉक्स। अब जो चीज़ें हमें लग रहा है कि नहीं है, हमारी प्रायोरिटी में नहीं आती, तो कट दैम, राइट। उन चीज़ों को हटाइए उस तरीके से। एंड ऑफ कोर्स माइक्रो गोल सेटिंग बहुत हेल्प करती है। तो प्लान योर थिंग्स, कैसे करने वाले हैं, राइट। इफ़ यू आर वंस डन विद योर वॉट कि क्या करना है, राइट। अगर आप इस चीज़ से डन आप इस चीज़ को कर चुके हैं, ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, एंड देन यू विल प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली। ऐसे होगा। एंड देन इफ इट वर्क्स फॉर यू देन विजुअलाइज इट। और विजुअलाइज अगर आप नहीं कर पाते तो जस्ट डू इट, जैसे प्लान किया है कीजिए, चीज़ें होंगी। सेकेंडली द फिज़िकल स्ट्रेंथ, मतलब मुझे लगता है सबसे कई बार बहुत ज़्यादा इग्नोर एस्पेक्ट हो जाता है इस प्रिपरेशन की जर्नी में, राइट। कि हम इसको भूल जाते हैं, हम बस अपना एकेडमिक प्लेयर को स्ट्रेंथन करने में लग जाते हैं। नहीं, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के साथ ही वो हेल्दी नॉलेज हम प्रिजर्व कर पाएंगे, उसको मेंटेन कर पाएंगे, राइट। सो वी नीड अ फिट बॉडी टू फ्यूल अ फोकस्ड ब्रेन। अब फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि केवल जिम जाओ और जस्ट टू इट इज़ अबाउट ओनली डेली वाइटलिटी, कि हम अपने आप को स्ट्रेंथन रखें, फिट रखें। अब उसके लिए भी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इनके बारे में भी हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे। जैसे योर स्लीप साइकिल मस्ट बी एज पर योर नेचर, 7 to 8 hours इज एज रिकमेंडेड। तो अब उसमें आप देख लीजिए कि आप कितने पे कंफर्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी 12 घंटे भी सो रहे हैं और कभी आप 2 घंटे भी नहीं। जस्ट डोंट डू दिस थिंग्स, बी डिसिप्लिन्ड थ्रू आउट दिस जर्नी, इट विल हेल्प। एंड थर्ड थिंग, द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट, जिसके बारे में चारों तरफ बातें होती हैं, एकेडमिक पिलर। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जीएस हो गया, ऑप्शनल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू, वी विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद अ क्लैरिटी, राइट। कि आपको क्या ट्रस्टेड सोर्सेज यूज़ करने हैं, है ना। एंड ऑफ कोर्स तो लिमिटेड, ये नहीं कि सब कुछ ही जो आया सब पढ़ लिया, जो आया सब पढ़ लिया, राइट। कैसे रिवाइज करना है, कैसे कंसाइज नोट्स निकालने हैं उसके। वी विल talk about all these things through our upcoming videos, ठीक है। इसके अलावा स्किल ऑफ आंसर राइटिंग, है ना, कैसे करना है, मॉक टेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स द टाइम मैनेजमेंट, के स्टडी, रेस्ट एंड
जो भी आपकी अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे मैनेज करना है, ताकि हम अच्छे से इस जर्नी को सस्टेन कर पाएँ विदाउट एनी सोरो एंड रिग्रेट, राइट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम आगे अपनी वीडियोस को करने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई टोल्ड अर्लियर कि हम क्या करने वाले हैं, तो सबको पता है कि क्या करना है। इस जर्नी में बहुत लोग हैं जो ये चीज़ गाइड कर रहे हैं, और इनफैक्ट अगर हम प्रिपरेशन की जर्नी में, तो हमको पता है, मोटा मोटा सबको पता होता है कि ये चीज़ें करनी है। कैसे करनी है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। वी आर हेयर टू guide you with the most efficient way and with a lot of clarity, which will give you confidence and keep you calm and focused throughout this journey. How are we going to do it? Through our demonstrations and practical strategies. These things ये ऐसे होने वाली है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, काइंड ऑफ थिंग्स। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉर यू। We are here to turn advice into action and confusion into clarity. And most importantly, we are going to do everything as per your prakriti. Our first target is to make you aware about yourself. ठीक है, you know about your prakriti, कैसे हैं आप, and plan the things accordingly. तो उससे क्या होगा, उससे चीज़ें और स्मूथ हो जाएंगी और आप एक स्मार्टर फैशन में चीज़ों को कर सकते हैं टू अचीव योर ग्रोथ, राइट। एंड लास्टली, माय पर्सनल नोट टू यू ऑल, whether you clear this exam or not, what truly matters is that you become self aware. आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता हो, आपको अपनी स्किल्स पता हो, आपको अपने अंदर का पोटेंशियल पता हो, एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, राइट। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती है, अगर आपको ये चीज़ें पता है अपने अंदर की, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी रिमार्केबल, जो शायद इससे भी काफ़ी बड़ा हो, राइट। बिलीव मी, यूपीएससी केवल एक रास्ता ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। So now take everything you have gained, your talent, wisdom and discipline, and move forward with confidence toward a greater purpose. अगर आपको अपने अंदर, अगर आप सेल्फ अवेयर्ड हैं, तो आप कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन कर लेंगे, और वो आप इन्हीं चीज़ों के थ्रू फाइंड करेंगे जो आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ में, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपके इनर पोटेंशियल हैं, आप उनके बेसिस पे चीज़ें कर लेंगे। सो डू नॉट फियर, डरना नहीं है कि ये नहीं हुआ तो अब अटक गए, एंड डू नॉट फ्रिज, ठीक है। कई बार कुछ देर के लिए रुकना ज़रूरी हो सकता है, राइट। कई बार कुछ देर के लिए रुकना कभी कभी ज़रूरी हो सकता है, पर अटकना नहीं है, क्योंकि अटकना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। अटक जाने और रुक जाने में फ़र्क होता है मित्र। तो अपने को क्या, रुक सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन अटकना नहीं है कि क्लैरिटी नहीं है। वो चीज़ें तभी होंगी जब हमें अपने आप के बारे में पता होगा, हमें अपनी स्ट्रेंथ, स्किल्स, पोटेंशियल पता होगा। सो अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू इज के डेफिनेटली यू विल मूव अहेड, यू विल अचीव व्हाट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर एफर्ट एंड बिलीव, राइट। बिकॉज व्हेन योर कर्मा इज ट्रू, इट नेवर फेल्स। Believe me, sooner or later it will always find its way. Sooner or later it always finds its way. So this journey is yours. Own it, live it, and rise through it. And what next in terms of videos on this channel, we will explore ईच पिलर जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, मेंटल, फिजिकल एंड एकेडमिक, इन डिटेल। अलॉन्ग विद दिस, एज पर योर नीड्स एंड रिक्वेस्ट, we are going to provide you more content, right, with much focus on how and why to build habits, not just what to do. No generic advice, just practical, relatable strategies.
right? So we are here not just a guide but to grow with you, Mr. Friend. Thank you for watching. Do like, comment, share and subscribe.